नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम लेंगे डिवीजन। दिस रूट 2 इज इरेशनल, दिस इज अगेन इरेशनल। मैं इनको क्या कर रही हूँ, डिवाइड। अब डिवाइड हो गया, इट मींस दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 अपॉन रूट 3। सो रूट 2 अपॉन रूट 3, दिस अगेन कैन बी रिटन एज दिस। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो डिवीजन जब हमने ली दो इरेशनल नंबर्स की, एक इरेशनल नंबर को हमने दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, फॉर दिस केस जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज इरेशनल। नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस। इसमें दिस वन इज द इरेशनल नंबर, दिस वन अगेन इज इरेशनल। अब यहाँ पे देखो रूट सेवन लाइक टर्म्स हैं, ये कैंसिल आउट होगी। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2/3 and this is a rational number. This is of the form p by q, q not equal to 0. So this is a rational number. Again, when we have divided two irrational numbers, then our result may be irrational, may be rational. So we can say when two irrational numbers are divided, then the result may be irrational or rational. So this was your third point, कि if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, then the result may be irrational or rational. And we have taken all the cases, and in this way you can show or you can give the examples of the irrational numbers where you can have the result as irrational or rational. आपका result irrational भी आ सकता है और rational भी आ सकता है जब आप दो irrational numbers पे addition, subtraction, division या multiplication कोई भी operation perform करते हो. So this जो है आपका ये concept, this will be used in your next exercise. Now move on to your exercise 1.5, question number 1. Exercise 1.5, question number 1. So the answers you will tell me now. First we are having classify the following numbers as rational or irrational. You are given some numbers, you are to tell whether these are rational or irrational. Sarthak, you will tell me the first question, bache. First question, first part. This is your exercise 1.5, question number 1, part 1. Unmute yourself. Sarthak. You can unmute yourself, बच्चे. नहीं भी आता तो you have to tell me कि ma'am I don't know the answer, so that I can explain it once again. I can explain the concept again. Otherwise मैं यही मानूंगी कि आप यहाँ पे just अपनी मीटिंग ऑन करके गायब हो. Yes, दिया. Irrational number. फर्स्ट पार्ट है हमारा, दिस इज 2 minus root 5. व्हाई इज इट इरेशनल दिया? Ma'am, because root 5 cannot be solved and it cannot be expressed in form. Yes, root 5 जो है q. that is an irrational number that cannot be further simplified. So our this answer जो है 2 minus root 5, this will be an irrational number. Very good. Now the second part, 3 plus root 23. This is your first number minus root 23. Now the next, Ramneek, Diya, you can mute yourself, bache. Ramneek, your hand was raised. Okay, Dhruv. Panika. Yes, ma'am. This is rational. This is rational. Why? Because cube plus cube 23 and minus cube 23 will cut with each other, and then only 3 will be left. Yes, root 23 plus and minus will get cancelled. That is rational number. And we are left with 3, which is a rational number. Very good. Now the next, Ayan, third part. मैंने वैसे ये करवाया भी है अभी. 2 root 7 upon 7 root 7. Is it a rational number or irrational number? Unmute yourself, Ayan.
I can see only 2-3 hands raised. Archita, will you try? Mannat? Okay, Arshpreet. Ma'am, this is rational number because root 7 will cut and 2 by 7 will left only. Yes, root 7 will get cancelled. We are left with 2 by 7. That is a rational number. Very good. Now the next question, Lavleena. Fourth part, we are having 1 by root 2. Lavleena. Unmute, you can unmute. Yes, ma'am. Yes, Vache. 1 by root 2. Is it rational or irrational? It's an irrational number. Yes, why? Because जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट एन इंटीजर, ये आपका इंटीजर नहीं है. रैशनल के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो p एंड q जो है आपके बोथ आर इंटीजर्स. हियर यू आर हैविंग रूट 2 एज इररेशनल, तो ये आपका इंटीजर नहीं है, तो q इज नॉट एन इंटीजर, सो इट इज एन इररेशनल नंबर. आपको रीजन वैसे नहीं देना है, बट स्टिल यू शुड नो. उन्होंने जस्ट यहाँ पे आपको क्लासिफाई करने के लिए कहा है, बट यू शुड नो द रीजन. Now the fifth part, we are given 2 pi. Pi जो है ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है. Pi जो है that is an irrational number. Today I will send you a video in that you can see एक पार्क है, उसमें साउथ साइड पे कहीं पे है, मैथमेटिकल पार्क है. वहां पे उन्होंने जो है पाई की अप टू 1000 प्लेसेस जो है 1000 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू निकाली हुई है. बट वो क्योंकि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है, तो पाई को जो है हम लेके चलते हैं दैट इज एन इररेशनल नंबर. अब ये क्वेश्चन आपका क्या रिड्यूस हो गया? 2 इज अ रैशनल नंबर, पाई इज एन इररेशनल नंबर, सो व्हाट विल बी 2 पाई? रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल, व्हाट विल बी द आंसर? Any one of you can? It will be yes, irrational. yes. It is irrational. It will be an irrational number. 2 into pi. 2 जो है आपका that is a rational number. Pi जो है that is an irrational number. इसका भी क्वेश्चन आएगा आपका रीजन कि हम पाई को जो है वो irrational नंबर है, बट जब हम इसकी वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं तो 22/7 हमें पता है रैशनल है. वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा, देन वी विल डिस्कस. अदरवाइज जहां पे आपका पाई आ गया 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो पाई इज एन इररेशनल नंबर. 2 रैशनल, पाई इररेशनल, तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल. So this was your question number 1. Now moving on to question number 2. This type also again we have discussed. Now you are to simplify the given expressions over here. So first part, question number 2, we are given. Excuse me, ma'am. Yes, bete. Ma'am, 22/7 and 3.14 हम पाई को irrational क्यों कह रहे हैं और 22/7 को rational क्यों कह रहे हैं? Diya, when this question will come, this is your question number 3. Second करने के बाद I will discuss. Okay? Second का first part हमें given है 3 plus root 3 into 2 plus root 2. 3 plus root 3 into 2 plus root 2. We are to simplify this expression. अब ये इस तरह के आपने किए हुए हैं x plus y into z plus w. You can say first वाला element as it is multiplied by the second bracket full as it is लिख दोगे, तो 3 multiplied by 2 plus root 2. Then second element with the sign, that is plus root 3 multiplied by the whole second bracket. जब आप इनको ओपन करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट, लवलीना, इफ यू आर हैविंग नो डाउट यू कैन लोअर योर हैंड बच्चे. 3 plus root 3 into 2 plus root 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into first bracket, then second number with the sign into second bracket. Now you will simplify. अब ये 3 अगेन रिलेटिव घर आया तो सबसे मिलके जाएगा, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. So 3 2s are 6 plus 3 into root 2 is 3 root 2 plus यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस into प्लस is प्लस.
root 3 into 2 is 2 root 3. Now plus into plus is again plus, root 3 into root 2, that will be written as root 6. root a into root b is root ab. So this is root 6. अब यहाँ पे देखो कोई like term नहीं है आपकी, so ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 6 है, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ओवरऑल आप इसका इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, अभी मैंने इस टाइप का एक करवाया था। नाउ एनी वन ऑफ यू विल ट्राई दिस। ईवा, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। Yes. Ma'am, first term will, ma'am, we will multiply 3 with second term. Okay. And then under root 3. Isn't there any direct formula for this? You can do in this way. Yes, also. ma'am. What is the formula? Ma'am, we can cut Yes, minus root 3 and plus root 3. क्या करेंगे इसको? चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट। यहाँ से दिस इज 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट के नीचे जब आपका सेम नंबर होता है मल्टीप्लाई करते हुए तो हम उसको विदाउट रूट लिख देते हैं। उसका रूट जो है हाफ प्लस हाफ, उनकी पावर्स ऐड होके 1 बन जाती हैं। माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 गेट्स कैंसिल्ड, 9 माइनस 3 इज 6। Either you can do in this way, otherwise we are having a direct formula also. क्या formula है? मैंने अभी direct formula करवाया था पहले आपको। Yes, ma'am. A plus B. Yes. A plus B. A plus B. A minus B. This is A plus B into A minus B. Now what is this equal to? A square minus B. A Square minus B square. A square minus B. One by one, one by one. A square minus B square. Now, Diya, what will be this equal to? Ma'am, 3 raised to power 2 Yes, 3 square minus square of 3 root of 3 raised to power 2. yes, root 3 square. अब जब भी रूट होल टर्म का आप स्क्वायर लेते हो, रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाता है। सो हेयर अगेन वी आर हैविंग दिस 9 माइनस 3, दैट इज 6. तो यू कैन डू इन दिस वे और यू कैन डू इन दैट वे, बट यू प्रेफर टू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला अगर उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिया होता है। So this was your part number 2. Now part 3 and 4. These are your homework parts. Question number 2, part 3 and part 4. These are your homework parts. Now we will discuss question number 3. अब हम question number 3 discuss करेंगे। Recall, आपने पहले जो किया हुआ है उसको recall कर रहे हैं हम। Pi is defined as the ratio of the circumference. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया जो आपने किया है। आपने इधर क्यूब, यस मैम, रूट 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 into 3 रूट 9? This one? यस मैम। बेटे यहाँ पे ये रूट के नीचे है, बट दिस इज नॉट अंडर द रूट। ये 3 यस मैम। नेक्स्ट वाले में वी हैव डन रूट 3 इंटू रूट 3, दैट इज रूट 9। रूट 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। रूट 9 किसके इक्वल है? 3 के। तो हियर आई हैव रिटन डायरेक्टली इट एज 3. ओके, थैंक यू। ओके बच्चे। So if any doubt is there in question number 2, you can ask. Otherwise, हम question number 3 discuss कर रहे थे. In this, we are given pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. That is, pi is equal to c upon d. ये आपने अपने 7th क्लास में I think किया होगा। pi जो है that is the ratio of circumference of the circle to its diameter. Whenever आप different circles अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। This kind of activity you can do at home also. आपने क्या करना है, डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं और उन सर्कल्स के सरकमफ्रेंस को मेजर करना। सरकमफ्रेंस मेजर करने के लिए क्या करोगे, एक पॉइंट ले लेना,
एक थ्रेड को इसके ऊपर पूरा रख के देन थ्रेड की आप लेंथ मेजर कर लोगे, डायमीटर आपका इसके पास होगा, फिर जब आप सरकमफ्रेंस और डी का रेशियो निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू पाई, जिसको आप 22/7 लेके चलते हो, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो हम क्या पढ़ते आए हैं अभी तक कि जो हमारा पाई है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सी बाई डी, यानी कि एक रैशनल नंबर है। बट अब 9th में आप क्या कर रहे हो, 9th में आप पढ़ रहे हो कि पाई जो है दैट इज एन इररेशनल नंबर। तो नेक्स्ट लाइन में उसने यही कहा कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या कह रहे हैं, C अपॉन डी, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो इक्वल टू पाई। तो पाई जो है क्योंकि दो नंबर्स का रेशियो, इंटीजर्स का रेशियो बन रहा है, तो दिस विल बी रैशनल। बट पाई क्या है, दैट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये जो फैक्ट है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इररेशनल नंबर है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यू आर टू रीसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो, जब हम C और D को मेजर करते हैं, C और D को जब आप मेजर करोगे तो हम इसको स्केल से मेजर करते हैं, और स्केल में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज होती हैं, मान लो 1 और 2 के बीच में, दैट इज 0.1, 1.1, 1.2, विजुअलाइजेशन के आपने क्वेश्चन उस दिन किए थे, 1.3, 1.4। अब 1.3 और 4 के बीच में जो वैल्यू है, जैसे मैंने उस दिन वहां पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 5.3777, तो ये वैल्यू जो है, दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वी कैन नॉट मेजर विद द स्केल। स्केल पे हम 0.1 डेसिमल तक ही मेजर कर सकते हैं। इट मींस कि जब हम उनको मेजर करते हैं, हम उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे होते हैं। व्हेन वी आर मेजरिंग C एंड D, वी आर टेकिंग देयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जब हम उनको स्केल से मेजर करते हैं। तो अब अगर वो नंबर मान लो मेरे पास इस फॉर्म में है, तो या मैं उसको 5.3 लिख लूंगी, अगर मैं वो वैल्यू ट्रंकेट कर देती हूँ, आगे वाले डेसिमल प्लेसेस छोड़ देती हूँ, या अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करती हूँ तो मैं 5.4 ले लूँ। तो या नंबर मैंने 5.3 अप्रोक्सीमेटली ले लिया, या मैंने 5.4 अप्रोक्सीमेटली ले लिया, जबकि मेरा नंबर ये इररेशनल था, 5.3777 अप टू इंफिनिटी। तो जब हम C और D को लेके चलते हैं तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लेते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो हैं हमें ये वाला रिजल्ट रैशनल दे देती हैं, जबकि हमें नहीं पता कि C और D में से कौन सा नंबर इररेशनल है, क्योंकि जब मैंने इनकी वैल्यूज इस तरीके से ले ली, अब मुझे नहीं पता कि C इररेशनल था या D इररेशनल था। तो यही रीजन है कि जब हम पाई को C और D के रेशियो की फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारा नंबर रैशनल आ जाता है, जबकि पाई क्या है, दैट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये वैल्यूज क्योंकि हम स्केल से मेजर करते हैं, so these are the approximate values and C, either of the C or D may be irrational. So you can note it down. आप इसको लिख लो. When we write pi as a ratio of C and D, when we write pi as a ratio of we take approximate values. बेटे म्यूट रखोगे आप सब अपने आप को, otherwise I won't give you the option. C by D, we take the approximate value of C and D that is measured with scale. जो हमने स्केल से मेजर की होती है वो वाली हम उसकी approximate value लेते हैं. We take the approximate value of C and D that is measured with C and D. अब either of C and D हमें नहीं पता कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो either C और D is irrational, दोनों में से जो भी irrational होगा, therefore pi जो है आपका that is irrational. यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं कि अगर एक नंबर आपका इरेशनल है, उसको आप एक रैशनल से डिवाइड करते हो या एक रैशनल को इररेशनल से डिवाइड करते हो, तो आपका जो रिजल्ट है दैट विल ऑलवेज बी इररेशनल.
तो दोनों में से सी या डी में से कोई भी अगर इरेशनल होगा तो आपका पाई इरेशनल आएगा, या इवन अगर दोनों भी इरेशनल है, मान लो एक मैंने 2√3 ले लिया, दूसरा मैंने 3√7 ले लिया, अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है, बट बोथ आर इरेशनल नंबर। अब जब हम इनको सी बाई डी की फॉर्म में लेते हैं, वी विल टेक देयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के कारण रिजल्ट मेरा यहाँ पे रैशनल बन जाता है। बट अगर मैं वैसे देखूं तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया, रिजल्ट इज इरेशनल। रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल, बट इस केस में वो इरेशनल बनेगा। सेम वे में अगर मैं 2 और 3√7 ले लेती हूँ, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज अगेन इरेशनल। तो सी और डी में से चाहे एक रैशनल है, चाहे एक जो है सी इरेशनल है, डी रैशनल है, या डी इरेशनल है, सी रैशनल है, आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इरेशनल। तो यहाँ क्योंकि आप स्केल से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेजर करते हो, इसलिए जो हम जब उसको सी बाई डी की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि पाई आपका रैशनल आ जाता है। अदरवाइज सी और डी में से कोई एक नंबर आपका इरेशनल हो सकता है, देयरफॉर पाई इज irrational. So this reason you will write down. अब next question number 4 के लिए today तो we are not having time. Tomorrow again you will keep ready your construction material. Question number 4 जो है वो मेरे साथ साथ आप draw करोगे. And now question number 5 एक बार discuss कर लेते हैं. First part छोटा सा है that we will discuss. Question number 5 part 1. हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। Whenever we are to rationalize the denominator, तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन होता है डिनोमिनेटर में, सपोज यहाँ पे मुझे क्या गिवन है 1/√7। अब यहाँ पे ये आपका एक सिंगल नंबर है, तो इसको एज इट इज रैशनलाइज का मतलब क्या है कि उसका जो इरेशनल वाला पार्ट है अगर सिंगल नंबर है तो उसी से डिवाइड करो, उसी से मल्टीप्लाई करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लेके आना है। अभी 1/√7 मेरे पास क्या है, इसमें डिनोमिनेटर इज इरेशनल। जब मैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रही हूँ मींस मुझे इसको जो है क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। अब √7 को रैशनल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर और इज ऑटोमेटिकली अ रैशनल नंबर। तो √7 को मैं √7 से ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपको पता है जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 into √7 is √7, √7 into √7, रूट के नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी रिटन विदाउट रूट। तो ये आपका √7 जो है ये क्या बन गया, रैशनल। तो यहाँ हमने क्या किया था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कल हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट यू विल डू विद पेंसिल इन योर बुक्स ऑन